یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر گلبرگہ میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر جناب سلیمان خطیب صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شرکت کی عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے پہلی بار گلبرگہ میں مشاعرہ پڑھ رہے جناب راحت اندوری صاحب نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ یہ دوسرا ویڈیو ہے ان کا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر راحت اندوری کو سنیں، ان کی سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ اور چاند ہر چھت پہ، بھائی چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں۔ واہ، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ چاند ہر چھت پہ ہے، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں۔ نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ میں پہلی بار آیا ہوں گلبرگہ شریف، یہ پہلا میرا مشاعرہ ہے گلبرگہ شریف میں۔ اگر میرا یہ شعر آپ کے حافظوں میں کہیں محسوس ہو گیا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ یہ شعر پڑھ رہا ہوں گلبرگہ۔ نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں۔ پوچھتے کیا ہو کہ رومال، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں۔ ایک غزل پڑھتا ہوں کہ انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو۔ اور زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو۔ واہ واہ، زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو۔ چاند سورج کہاں، اپنی منزل کہاں، چاند سورج کہاں، چاند سورج کہاں، اپنی منزل کہاں، ایسے ویسوں کو منہ مت لگایا کرو۔ چاند سورج کہاں، اپنی منزل کہاں، ایسے ویسوں کو۔ دیکھیے ایسا ہے، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ مجھے اور محب صاحب کو اسٹیج کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ تمکین میاں جو آج کے اس مشاعرے کے رواں ہیں، کنوینر ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ندا فاضلی صاحب حیدرآباد سے چل چکے ہیں، ذرا آپ تھوڑا سا لمبا کھینچ لینا۔ تو آپ ذرا سا اگر ہم شعر کمزور بھی پڑھیں تو تھوڑی آپ بھی نبھائیے گا، ہم بھی نبھا لیتے ہیں، کام بن جائے۔ واہ واہ، کیا بات کہی آپ نے، واہ واہ۔ ایسے ویسوں کو منہ مت لگا، ایسے ویسوں کو منہ مت لگایا کرو۔ سنیں دوستو،
अर्ज कर रहा हूं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, क्या गजल तेरी छेड़ हर दिया बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, खसारा करके। वाह वाह तेरी वाह हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। क्या आसमानों की तरफ क्या फेंक जरूरतमंदी दिया, है, वाह, आसमानों वाह, की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, इस शेर का मजा लीजिएगा। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। अरे क्या आते गजल का शेर है, वाह 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 वाह। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। पढ़िए पढ़िए मुंतजिर हूं कि सितारों की, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। वाह वाह वाह। नहीं और मैंने पहले कहा था कि आप जी खोलकर सुनाए और वो दिल खोलकर सुनेंगे वो लोग। हाँ सुन, मुलादा पर क्या है ये? नहीं यकीनन साहब, मैं सलाम करता हूँ आपकी इस बस्ती को, बहुत खूबसूरत। एक दो गजलें और सुनाता हूँ। हम ये सोच रहे थे कि हम जितने भी शायर हैं एक बार और पढ़ेंगे, तब तक हमारे दूसरे मेहमान हैं जो आ रहे हैं वो है जी। दोस्तों, ये राहत साहब के लिए सजा नहीं है बल्कि एक तरह का इनाम है। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर, कभी मजा लीजिए मिसरे का, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। वाह 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 वाह। पढ़िए पढ़िए राहत साहब। छोड़ गया मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। क्या कहने राहत साहब? है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं, और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो। कहीं बिहार में कोई शहर में कटिहार में कहीं मुशायरा हो रहा था, तो जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि मेरे बच्चों
ऑडियंस में से एक आवाज है कि जी हाँ पापा। शेर पढ़ रहा हूं कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। और एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। एक अखबार हूं, बहुत खूब। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। मैं निहत्ता ही जमाने। एक 3-4 शेर और आखिर में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद वसीम भाई तशरीफ लाएंगे। मैं पढ़ तो रहा हूं मेरे अजीज, मैं पढ़ रहा हूं। मैं जो देखिए हजरात, यकीनन राहत इंदौरी साहब मोहतरम सदर मुशारा वसीम बरेलवी के साथ फिर अपना मजीद कलाम सुनाएंगे। आप जब तक निदा फाजली नहीं आएंगे जब तक पढ़ेंगे, चाहे वो कल आए। राहत साहब की जबान मुबारक हो। मतलब मुबारक हो या नहीं, ये चाहते ही कि कल आए। मैं निहत्ता ही ये शहर में आग लगाने के लिए काफी। एक गजल के कुछ शेर में आपकी खिदमत में और पढ़ना चाहता हूँ। अब ये इधर वाली है वो। नहीं, ये मेरे प्रश्न से पहले सुन लीजिए, उसके बाद देखिए साहब, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी। माफ कीजिए गलत। आज क्या है कि सूरज, सितारे, चांद, इधर देख ले बेटा, कुत्ता है बच्चे अभी ठीक है, देख ले बेटा। ठीक है। एक मतलब सुन लें दोस्तों, इस बहाने मुझे ये देखने का भी मौका मिल गया। सुनिए कि तूफानों से आंख मिलाओ। ये जितने नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके लिए मैं खास तौर पर मेरे 2 मित्र हैं। बस क्या है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह। तूफानों से आंख मिलाओ, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। क्या कहने? फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप लोगों को ज्यादा कुछ दिलचस्पी इश्क में लग नहीं रही है मन। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। वाह वाह वाह। ये मुनाफे की तिजारत है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 वाह। क्या इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है,
चलो इश्क करें आप हिंदू में मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाज। आइए। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सुलेमान खतीब मेमोरियल एजुकेशनल कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा कर्नाटका ने। इस ट्रस्ट को अपनी खिदमत देते हुए 25 साल हो गए हैं। जनाब सुलेमान खतीब दक्कन के मशहूर शायर गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों को बेदार किया। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया जनाब तमकीन खतीब साहब ने। जनाब तमकीन खतीब साहब जनाब सुलेमान खतीब साहब के फर्जंद हैं और हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक उर्दू अदब की शमा को रोशन किए हुए हैं। तो ये था कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जो हैदराबाद दक्कन के मशहूर शायर जनाब सुलेमान खतीब साहब की याद में मुनक्किद किया गया था। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम या किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।